Good morning, students. Hope you all are good at your home. We are back to our new video of chemical kinetics. So today we are going to discuss about the dependence of rate of chemical reaction on the concentration of the reactant. Last time we have discussed about there are certain factors which affect the rate of reaction. So today we will discuss about that how the rate of reaction will depend on the concentration of the reactant. The law which can easily express how the rate of reaction is related to the concentration of reactant is rate law. Rate law is the law in which we will study about that the rate of reaction can be expressed in terms of the concentration of the reactant. In the examination, if something related to rate law is asked, that what do you mean by the term rate law? बच्चों rate law क्या होता है? तो rate law is the law in which we are expressing that the rate of reaction depends on the concentration of the reactant. ठीक है? इस बात को हम लोग rate expression या rate law में express करेंगे. बच्चों rate law को समझने के लिए हम लोगों ने एक reaction ली है. We have considered a reaction. We have considered a reaction in which AA and BB are the reactant. It reacts to form CC and DD. We are applying here. We are going to apply the concept which is rate law, and rate law says that the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant. A की पावर A हो जाएगी बच्चों. अच्छा, A की पावर अभी क्या डिसाइड होगी वो हमें देखना पड़ेगा. A की पावर A और B की पावर B अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बट यहाँ पर रिएक्टेंट तो A और B है, इसके कोएफिशिएंट स्मॉल a और स्मॉल b है, लेकिन A की पावर x और B की पावर y हो सकती है. मतलब दिस A एंड B कैन बी इक्वल टू x और कैन बी इक्वल टू y. It doesn't mean that always A is equal to x and B is equal to y. This coefficient might be different. So rate is proportional to A की power x and B की power y. Then rate will be equals to A K. Constant, proportionality constant is A की power x and B की power y. In the rate law we are expressing. What do you mean by the term rate law? What do you mean by the term rate expression? In the rate expression, we are expressing that the rate of reaction can be expressed in terms of the molar concentration of the reactant raised to some power which may be or may not be equal to stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient बच्चों small a और small b होते हैं. तो x और y की वैल्यू a और b के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए आप कि what do you mean by the term rate law? Rate law is the law in which we are expressing that the rate of reaction can be expressed in terms of the concentration of the reactant. In the rate expression or rate law, we are considering a reaction in which AA plus BB gives out CC and DD, and rate is proportional to A की power x and B की power y. Proportionality का साइन हटाएंगे, क्या आएगा? K is proportionality constant. Here K is rate constant. ठीक है बच्चों, K यहाँ पर क्या है बच्चों? Rate constant है. तो यहाँ पर आपको रेट लॉ समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना? ये रेट लॉ होता है और यहीं पर ही हम इसी को रेट एक्सप्रेशन भी कह देते हैं. और के यहाँ पर है बच्चों रेट कांस्टेंट. ठीक है, के यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट. तो रेट लॉ के बारे में हमने बात की बच्चों, और रेट एक्सप्रेशन के बारे में बात की, in which we are expressing that the rate of reaction depends on the molar concentration of the reactant. And now we are going to discuss about order and molecularity of a reaction. This is one of the most important topic that is very important for board examination. What do you mean by the term order of reaction? The order is equal to the order is sum of power of concentration of reactant, sum of power of concentration of reactant इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. जो हम लोगों ने बच्चों में रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात की ना, उसमें जो आपने पावर दी थी ना x और y, उसका सम ऑर्डर कहलाता है. यानी रेट लॉ के अंदर अगर मैं जो पावर होती है ना रिएक्टेंट की, उसको सम कर दूं तो मेरे को ऑर्डर मिल जाएगा. यानी ऑर्डर बच्चों किसके इक्वल होता है? सम ऑफ पावर ऑफ
concentration of reactant in rate law expression। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही डिपेंड करेगा। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर किसके इक्वल होता है बच्चों? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी हम लोगों ने इक्वेशन में डिराइव किया था फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि रेट इज इक्वल टू होता है के ए की पावर x होता है बच्चों b की पावर y। तो ऑर्डर बताइए किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई। वेरी गुड। पता है बच्चों, ऑर्डर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी 0, 1 और इवन इन फ्रैक्शन। पता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब रेट जो है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि अगर आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में बन जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर के बन जाएंगे HCl। और अमोनिया की रिएक्शन अगर होगी ना हेवर्स प्रोसेस में, ये तो बन गया HCl। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस अमोनिया, अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपको अगर ऑर्डर पता लगाना है तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जिस भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की पावर जीरो होगी तो वो जीरो ऑर्डर होगा बच्चों, पावर 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। और अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो उन दोनों की पावर प्लस कर दी जाएगी। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि बच्चों इसमें ऑर्डर क्या होने वाला है? a की पावर है 3/2 और b की पावर है -1। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? बच्चे कह रहे हैं सर 3/2 में से 1 माइनस कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों। देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होगी ना उस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या ऑर्डर होने वाला है। तो 3/2 में से बन जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आएगा? बच्चे कह रहे हैं सर 1/2 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 3/2, हाँ जी 1/2 आ जाएगा। अच्छा ये बताएं बच्चों इसका ऑर्डर क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू के a की पावर 1 b की पावर 0। वेरी गुड, 1 आया आंसर। क्यों आया 1? क्योंकि b के रिस्पेक्ट में 0 है ऑर्डर और a के रिस्पेक्ट में 1 है। तो ऑर्डर जो होता है वो रेट लॉ की सम के इक्वल डिपेंड करेगा। 1 + 0 = 1। यानी ऑर्डर का मतलब बच्चों क्या होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर दे रखी होगी वो ऑर्डर होगी। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इवन इन फ्रैक्शन आल्सो। ठीक है, ये तो हम रिएक्शन देख के नहीं बता सकते ऑर्डर। वी कैन नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वी कैन नॉट टेल दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय सीइंग द बैलेंसिंग इक्वेशन। मैं बैलेंस देख के मतलब एक इक्वेशन को देख करके नहीं बता सकता। ये इक्वेशन में देख रहा हूं, मैं कह दूं कि सर इसका ऑर्डर बच्चों क्या होगा? 2 होगा, नहीं होगा। वी कैन नॉट टेल सर अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर 0 हो सकता है। ठीक है, और ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों पर अप्लाई हो सकता है। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो कि एक स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है बच्चों जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। द रिएक्शन which take place in multiple steps are complex reaction and the reaction which take place in single step are known as elementary reaction. So this order concept can be applicable for both type of reaction, elementary also and complex reaction also. अभी डिटेल में बात करेंगे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी ना तो RDR यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो होता है स्लो स्टेप। स्लो पर ही ऑर्डर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो स्टेप स्लो है या फास्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर कैन बी एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिएगा।
और ऑर्डर को जो है अप्लाई तो कर ही सकते हो, साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है ऑर्डर, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे थे हम लोग। तो मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है बच्चों? बेसिकली दिस मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं बच्चों, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यानी मॉलिक्यूलरिटी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ reacting species, number of reacting species participating in the reaction। तो जितनी भी reacting species बच्चों पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? मॉलिक्यूलरिटी होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग in the reaction। very good। reacting species क्या हो सकती है बच्चों? it might be ions, molecules, ठीक है, आयन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। it can never be equal to zero। देखिए मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। why molecularity cannot be equal to zero? क्यों नहीं हो सकती बताएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी अगर जीरो हो गई तो रिएक्टिंग स्पीशीज ही नहीं होगी ना। द रिएक्टिंग स्पीशीज विल आल्सो बी जीरो एंड रिएक्शन विल नॉट बी टेक प्लेस। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो जस्ट बिकॉज़ इफ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज इक्वल टू जीरो देन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ऑर्डर सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर कैन बी 0, 1 और इन फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बच्चों कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो मॉलिक्यूलरिटी है। अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर कहलाएगा। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट को हीट कराऊं बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट कराऊंगा ना तो मुझे मिल जाएगा N2O plus H2O, ठीक है, N2O plus 2H2O। ये ध्यान रखिएगा ये यूनिमॉलिक्यूलर हो गई, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। H2 plus Cl2 is equal to 2HCl। हाँ, H2 plus Cl2 ये होगी बायमॉलिक्यूलर। बेटा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होती है जिसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? 1। बायमॉलिक्यूलर बच्चों को कौन सी होगी जिसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे? 2। यानी मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये बायमॉलिक्यूलर हो गए, ठीक है। ये है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज़ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर मे बी मोर देन वन स्टेप। तो मोर देन वन स्टेप होगी तो रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सी रिएक्टिंग स्पीशीज काउंट करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं होने वाला। ये तीसरा डिफरेंस आपको नोट करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, बट order can be applicable for both reaction, simple also, elementary also and complex also। ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। व्हाट डू यू मीन बाय सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसका ऑर्डर होता है 1 लेकिन मॉलिक्यूलरिटी होती है 2। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन रेट केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, दो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मैं केन शुगर की बात करूं, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसको हाइड्रोलाइज कर दूं तो हाइड्रोलाइज करने पर मुझे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बच्चों। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ये देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है 1 और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है 2। यानी कि रेट केवल इस पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। अगर मैं ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो
hydrolysis of ester is also a pseudo first order reaction example, because in that reaction also rate depends on only one reactant, not on the water, because the concentration of water is in excess. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, pseudo first order. ठीक है, हम लोग अगली वीडियो की तरफ मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.